So yes, so we basically studied this particular formula, correct? Now you know that this particular formula was theoretical one. So there was one need to prove this particular thing. Otherwise, you wouldn't get Nobel Prize. You get Nobel Prize only if you prove something. If you don't prove something, you don't get Nobel Prize. So De Broglie basically gave a theoretical formula which later on needed to be proved. That thing was done by Davison and Garmer. Okay, I know what it looks like, but it sounds like just as I said, Davison and Garmer. Okay, so they basically did one experiment. अब इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको थियरी नहीं आएगा, ना ही इसके ऊपर एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट स्टिल इट इज देयर इन एनसीईआरटी एंड दैट इज व्हाई आई हैव टू टीच यू. ओके, सो जस्ट रिमेंबर इट फॉर लॉजिक पर्पस, और ज्यादा कुछ वेटेज है नहीं इसका. So basically, we have one experimental setup where we have two batteries known as HT and LT. HT stands for high tension battery and LT stands for low tension battery. Together, this unit, that is high tension battery and low tension battery, is known as electron gun because it fires electron. कैसे? हाई टेंशन बैटरी बहुत ज्यादा हाई वोल्ट पे होता है. ऑन द अदर हैंड, low tension battery is at very low voltage. So a large amount of current actually passes through this high tension to low tension battery. High tension and low tension battery together contribute to give what we call as electron gun. High tension means it is maintained at high voltage. Low tension, low voltage. So what is gonna happen? The electron will be flowing from this particular thing to this particular thing. Okay. So like current basically you could say, or whatever you want to call it. तो क्या होगा कि since there is large difference, the speed with which electron will be flowing will be very high. तो it's like electron bombard हो जाता है. वह एक बंदूक में से कैसे गोली निकलती है, वैसे इलेक्ट्रॉन स्पीड से बाहर निकलता है यहां से, the highlighted one. Okay, so this is what we call as, हाँ LT से हाई टू लो करंट फ्लो होता है ना, तो LT से एग्जिट में करंट बाहर निकलता है. आर यू गेटिंग इट? सर LT क्या है सर? Low tension battery, HT high tension battery. So together they comprise what we call as electron gun. Okay, so what is gonna happen? Electron is gonna get out of this particular thing and then it is passed through collimating anode. Collimating anode को आप सिंपल लैंग्वेज में एक्सेलरेटर कंसिडर करो. आपको याद है एक्सेलरेटर का पर्पस क्या था? पार्टिकल्स को एक्सेलरेट. हाँ, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी फास्ट था उसको और फास्ट करने का काम कॉलिमेटिंग एनोड करता है. आई कैन इवन टेल यू हाउ इट वर्क्स, बट दैट वुड बी वेस्ट ऑफ नॉलेज फॉर यू. बहुत हेवी हो जाएगा चैप्टर एंड देन यू विल स्टार्ट हेटिंग इट. सो आई एम गोना स्किप इट. जस्ट रिमेंबर दैट कॉलिमेटिंग एनोड is nothing but accelerator. So it is going to accelerate electron much more, and since it accelerate electron at a higher speed, it acts like electron beam. ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एक दूसरे के पीछे आते हैं, सो दे फॉर्म अ बीम. बीम मतलब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ समथिंग. तो इलेक्ट्रॉन का बीम क्रिएट हो जाता है. रिपीटिंग थिंग अगेन, वी हैव टू बैटरीज इन कांटेक्ट विथ ईच अदर. वन इज हाई टेंशन एंड वन इज लो टेंशन. बिकॉज ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस, one electron or a electron is generated with high velocity. So ये electron high velocity के साथ eject होता है. This electron later on passes through collimating anode, also known as accelerator. Now when this electron passes through the accelerator, what is gonna happen? क्या होगा रे ये फास्ट जाना चालू करेगा, बराबर कि नहीं? क्या होगा? ये स्पीड अप हो जाएगा. Yes sir. बराबर. एंड जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन साथ में जाएंगे तो वी गेट इलेक्ट्रॉन बीम. लेटर ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन समथिंग व्हाट वी कॉल एज निकेल क्रिस्टल. किसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं? निकेल क्रिस्टल के ऊपर. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दे बम्बार्डेड ऑन निकेल क्रिस्टल? दे गेट डिविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ. तो नॉर्मली वो स्ट्रेट जाने चाहिए थे, बट वो स्ट्रेट नहीं जा सकते बिकॉज दे आर बम्बार्डेड ऑन समथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गेट डाइवर्ज. सो वो डाइवर्ज होते हैं अपने ओरिजिनल पाथ से, एंड दे डाइवर्ज एट एन एंगल ऑफ थीटा नोन एज डाइवर्जिंग एंगल.
बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, अपन ज्यादा डिटेल में इसको नहीं याद रखने वाले। ये थीटा से जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वी कैन टेक देम ऑन अ सेंसर, एंड ये सेंसर कनेक्ट होता है गैल्वानोमीटर पे। हैव यू हर्ड अबाउट दिस डिवाइस एटलीस्ट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इट्स होल एंड सोल पर्पज इज टू मेजर करंट। सो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा Very small आएंगे, current. हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा Sir. आएंगे उतना ज्यादा करंट मेजर करेगा। बोलो। तो सेंसर गैल्वेनोमीटर का ही है कि वो हम लोग ने फोटो सेल वाला पढ़ा वो वाला? फोटो सेल वाला टाइप सेंसर है कोई तो। मतलब वो Getting it? गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड नहीं है? वो उसका आउटपुट गैल्वानोमीटर को कनेक्टेड है, तो गैल्वानोमीटर हाँ। रीडिंग बताता है करंट कितना आ रहा है उसका। गेटिंग इट? सर इलेक्ट्रॉन गन का काम ही यही हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करना, अगर देखा जाए तो। नहीं, तो? डिफ्लेक्ट करने का काम निकेल ने किया है। इलेक्ट्रॉन गन का काम इलेक्ट्रॉन फायर करना है। अरे निकेल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाते, तो डिफ्लेक्ट सर। कौन कर रहा है? निकेल कर रहा है। HT पे arrow, this particular arrow indicates that you can control this high tension battery. Variable voltage control कर सकते हो। रेओस्टेट के ऊपर भी अब आप सिंबल दिखाते हो, कैसे दिखाते हो ना, वेरिएबल रजिस्टर, सेम वे। तो इसका मतलब Yes, आप sir. कंट्रोल कर सकते हो। अभी ये डिफ्लेक्ट हुआ। हाँ बोलो। सर निकल क्रिस्टल ही जरूरी है सर? हाँ, निकल क्रिस्टल जरूरी है, तो प्रॉपरली डिविएट करता है, उसमें प्रॉपर्टीज है। You cannot sir. use quartz or any other crystal, yeah, any other material. So what happens? This particular electron beam strikes on the galvanometer, मतलब sorry sensor, and then sensor through galvanometer. और एक चीज है, ये जो सेंसर है ना, ये सेंसर दिख रहा है आपको, ये इसको डिटेक्टर बोला है। ये मूवेबल डिटेक्टर है, दैट मीन्स ये ऐसे ऊपर नीचे स्केल के ऊपर है ना, मूव हो सकता है। ऐसे स्लाइड होता है ना, पता है वो स्लाइडिंग कैसे होता है, वैसे टाइप में। यस सर। ओके, नाउ Pendulum? व्हेन इट, पेंडुलम नहीं बोल सकता, बट या पेंडुलम मतलब उसके लिए अपने आप मोशन होना जरूरी है। इसको तू लॉक कर सकता है। तो अगर समझो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्लेक्ट होके मिल रहा है, तो नाउ योर एंगल चेंजेस। कैन यू सी एंगल चेंज हो रहा है? या Yes sir. इनफैक्ट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यहाँ पे आप वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो ना, मतलब आपको 30 चाहिए आप 30 दो, आपको 32 चाहिए 32 दो, 38 चाहिए 38 दो, फॉर एवरी वोल्टेज ये एंगल चेंज होता है। क्या ये आपको पूरा सेटअप समझा? यस सर। या Okay. One last question for you, Nikita. Why do we have vacuum chamber over here? Nikita, this is for you. नहीं पता। Fatima, why do we have vacuum chamber over here? Yes sir. यहाँ पे vacuum chamber क्यों है? Sir, I joined late. I had अरे messaged कोई बात you. नहीं, कोई बात नहीं है, आज का टॉपिक नहीं है। वैक्यूम चेंबर का कंसेप्ट पहले एक्सप्लेन किया। नहीं Yes, पता sir. sir. नहीं पता, बराबर। कैन यू टेल मी, साहिल, कैन यू टेल मी वैक्यूम चेंबर का पर्पस क्या है? So because the electrons should not come in contact with the air, with the surrounding air. Yeah, who was this? कौन था ये? शाहीन थी। अच्छा शाहीन। अच्छा मैंने साहिल को बोला, शाहीन ने, कोई बात नहीं, शाहीन करेक्ट आंसर है तेरा, बिकॉज वो शर्मा के चली गई उधर बाजू में। ये यू आर करेक्ट, डोंट वरी। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, एयर इज हंग्री फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड दैट इज व्हाई इट एक्चुअली, लाइक हम लोग बोला था ना, जैसे शैनन ने याद रखा था, इलेक्ट्रॉन खा जाते हैं एयर, है ना, तो अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कि करंट फ्लो। हाँ, एयर लाइक एब्जॉर्ब कर लेती है इलेक्ट्रॉन को, एंड दैट इज व्हाई करंट फ्लो थ्रू द सेल। ओके, नाउ डेविसन गार्मर का एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये पूरा का पूरा लाइक सेटअप है ऐसे। तो व्हाट दे नोटिस ना, उन्होंने ना एक ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ना एक फॉर्मूला यूज किया। दैट फॉर्मूला इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, दैट फॉर्मूला नॉट मेंशन इन बोर्ड्स, so I'm not gonna talk about that formula. Actually I'm gonna talk about that formula. It is 1.2 lambda something sin theta, ऐसे कुछ है। Okay, this is known as Bragg's diffraction formula. आपको डिफ्रैक्शन सिखाया सर ने, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन?
कौन से Yes. सब्जेक्ट में? नहीं 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 सर, नीरज optics में नीरज ना? सर विल टीच यू नहीं सर, नहीं मालूम। सर वे ऑप्टिक्स वो शुरू वाला नहीं हुआ। फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स वो अभी होगा सर नहीं वो सर। वो वाला फॉर्मूला क्या है? n lambda is equal to 2d sin theta। n lambda equals, where did you study वही it? सर वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम में केमिस्ट्री में है यही सेम, पर उसके अंदर डिफ्रैक्शन भी है, वो सब है अलग थोड़ा हाँ। एक्सपेरिमेंट है। एक मिनट, n lambda equals to 2d sin theta। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लासेस में हुआ ही नहीं है, हम लोग को पता नहीं था। हाँ पर मैंने कर दिया, मैंने यूट्यूब से देखा। ओके, उसने किया ना, उसको करने दो, बट मैंने व्हाट कब इज बोला, मैं आपको रीजन बताई कि हमें क्यों नहीं पता बस। हाँ हाँ ओके उसने ओके, नित्या को नहीं बताया। तक वो वैक्यूम का क्या Why था? the hell will I? वैक्यूम बस लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ बोलो। का क्या था वो? वैक्यूम इसलिए क्योंकि एयर इज हंग्री फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा अगर एयर रखेंगे तो, सो यू वोंट बी एबल टू डिटेक्ट एनी करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गायब हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो देयर इज नो एयर टू ईट दोज इलेक्ट्रॉन। समझा? यस सर। ओके सुनो, ये n lambda equals to 2d sin theta is known as Bragg diffraction formula। तो इसमें ना वो जो एंगल है ना, एक्चुअली वो भी डिफरेंट कंसेप्ट है, ज्यादा डिप में नहीं जाता, इसमें वो एंगल पुट करते हैं। एंड उन्होंने क्या नोटिस किया, ये साइंटिस्ट ने, डेविसन एंड गार्मर ने, कि जब वो 54 वोल्ट के लिए सेटअप करते हैं ना, तो उन्हें मैक्सिमम करंट गैल्वानोमीटर शो करता है। कौन से वोल्टेज के लिए? 54 वोल्ट। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में वो एंगल डाला एंड दे कैलकुलेटेड द वैल्यू एज 0.165 नैनोमीटर। ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, और ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आया कि इलेक्ट्रॉन इतना वेवलेंथ एमिट करता है। यू डोंट हैव दिस फॉर्मूला, यू डोंट हैव टू स्टडी दिस फॉर्मूला, इग्नोर इट। बट इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ एक्सपेरिमेंट थ्रू 0.165 नैनोमीटर आया। डू यू नो ब्रैग्स का बोल रहा हूँ, डिब्रॉय का फॉर्मूला 1.228 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v। यस सर। ये फॉर्मूला में आप वो रूट v के जगह रूट 54 डालो, वोल्टेज के जगह 54 डालो, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन से वोल्टेज पे किया? 54, बिकॉज इट वाज मोर सुटेबल। दे गॉट द वैल्यू एज, आफ्टर पुटिंग इट इनटू डी ब्रॉय का वैल्यू, दे गॉट द वैल्यू एज 0.167 नैनोमीटर। लुक करेक्ट। एकदम करेक्ट, ऑलमोस्ट लाइक एकदम क्लोज यार। नैनोमीटर मतलब ऑलरेडी 10⁻⁹ में है, so that is very very accurate to be honest। and this is how they came to know कि अगर डी ब्रॉय इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट हो सकता है तो ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों नहीं। and that's how we prove that matter waves do exist in universe। लॉजिक समझा कैसे? लास्ट वाला नहीं समझा आपने, वो स्टेटमेंट। ये 0.167 हुआ, ये हाँ। 0.165 हुआ, दोनों मैच हुए बराबर। तो डी ब्रॉय करेक्ट था, हाँ कि नहीं? हाँ करेक्ट था। बराबर। तो डी ब्रॉय अगर इलेक्ट्रॉन के लिए करेक्ट था तो वो बाकी चीजों के लिए भी करेक्ट होना चाहिए ना, जैसे ह्यूमन बॉडी के वेवलेंथ के लिए। तो वो भी बाद में मतलब हम लोगों ने बिलीव करना चालू कर दिया। इज इट क्लियर नाउ? हाँ। वेरी गुड। और किसी को डाउट ये कंसेप्ट में, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, ये वाले में? सर क्या बोल सर इसमें कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है मतलब मेरे को समझा नहीं, मेरे को बोलना क्या है? हिंट दे। सर वो फॉर्मूला क्या था सर? वो n लैम्बडा 2d sin थीटा वाला था क्या? मतलब वो ब्रैग डिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, वो आपको इसमें आएगा। डिफ्रैक्शन करके कंसेप्ट है ना ऑप्टिक्स में, उसमें आएगा, वेव ऑप्टिक्स। रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन, वो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, मैंने बोला था ना इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है वहां पे। ओके सर। सर वो फॉर्मूले से ही सर लैम्बडा इतना निकला था 0.165। हाँ वो फॉर्मूला में पता है n लैम्बडा इक्वल्स टू 2d sin हाँ, थीटा सर। था। हाँ तो इसमें ये n को t इधर पे वगैरह ला दिए। बहुत मतलब लाइक बहुत सारी चीजें हैं, तुम लोगों को नहीं समझेगी अगर मैं अभी एक्सप्लेन करना चालू करूंगा। देयर इज विड्थ, फ्रिंज विड्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं।
तो कंफ्यूज हो जाओगे, दैट इज व्हाई आई एम नॉट। मैं कैमरा ऑन कर। और किसने ऑफ किया है? Trisha, are you there in lecture? Sir, did you Trisha, take my name? Yeah, yes, sir. को समझा सब? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो है ना, ये ऑब्जर्वेशन, वेव थ्योरी, फोटोन पिक्चर मत पढ़ो, अननेसेसरी चीज है, बोर्ड के सिलेबस से भी डिलीटेड है, एनसीईआरटी में भी इसको इंक्लूडेड नहीं किया है, मतलब लाइक इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अस, सो विल इग्नोर इट। नीट 2020 का क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी किया है। अभी बस जो टॉपिक बचा है ना, दैट टॉपिक इज नथिंग बट न्यूमेरिकल ओनली। सो वी आर गोना सॉल्व सम न्यूमेरिकल आफ्टर वी टेक ब्रेक, और कुछ करेंगे, मतलब बेसिकली वी विल ट्राई टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस। उसके बाद आप 2 सारे minutes तक न्यूमेरिकल लीव नहीं कराएंगे। करना। हाँ, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? तो उसके बाद आप सारे न्यूमेरिकल भी कराएंगे, नो थियरी। हाँ, बस हो गया ना बड़ी, कितना थियरी करेगा, चैप्टर खत्म, एवरीथिंग इज। न्यूमेरिकल। सर चैप्टर खत्म हो गया सर। चैप्टर ये। हाँ, आज छोटा हुआ है चैप्टर, और बहुत अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट है एक्चुअली। यस, आई एम कमिंग खान। सही बोले। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।